Hello students, welcome. In this video we will discuss torque acting on the electric dipole plays in uniform electric field. So let an electric dipole of moment P is placed in uniform electric field. First of all, you should know what is uniform electric field. Uniform electric field is a field whose strength does not vary. जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी नहीं करती है. इसको हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, राइट. और इसको हम हमेशा पैरेलल लाइंस में ही शो करते हैं, लाइक दिस वन. सो दिस फील्ड represented by the parallel straight lines is the uniform electric field. अब सपोज करो हमारे पास एक डाइपोल है यहाँ पे दिस इज द डाइपोल of dipole moment P placed in uniform electric field, and suppose the angle between the electric field and the dipole moment is theta. So we have to write, let angle between P, that is dipole moment, and electric field is theta. So now you see at this end the dipole has the positive charge, right, and at this end dipole has the negative charge. So you know electric field direction, we already know electric field की जो direction होती है that is from positive charge to negative charge. So it means at this point we have the positive charge here, this side, and in this side we have the negative charge. So now here positive charge, so positive charge, you know, in this side it is a negative charge, so they will attract each other. Means on the positive charge there will be the force of attraction. so यहाँ पे जो force लगेगा उसकी direction इसवर्ड टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसको नाम दे रहे हैं F1, और यू नो फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, Q इंटू E. सो हम लिखेंगे यहाँ पे F1, that is force on positive charge due to electric field. So F1 is equal to QE, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स E, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही है, या अलोंग E कर सकते हैं आप. सिमिलरली F2 mean force on charge ड्यू टू E. सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव. सो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे. सो ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन इन दिस वे होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो F2 इक्वल टू QE, डायरेक्शंस आर अपोजिट हियर. सो F2 इक्वल टू QE, opposite to E, direction of it is opposite of E. अब आप अगर इन दोनों फोर्सेस को देखें, तो ये दोनों फोर्सेस है तो इक्वल, F1 QE, F2 E, but their directions are opposite, even their line of action is not same, right? So such type of forces which are equal and opposite and their line of action is not same, they constitute the torque. So this is an important point to be remember here. Force acting are equal in magnitude and opposite in direction. Make a torque. क्यों बना रहे हैं torque? Because their line of action is not same. Now
we have studied about the torque in the previous classes in +1 also. Torque क्या है? Torque is equal to the product of either force into perpendicular distance. Either force, because forces are equal, so we can take any force at perpendicular distance, right? So for the perpendicular distance you have to do some more work. क्या करना है आपको? इस पॉइंट को मान लो आप A और यहाँ पे मान लो आप B. अब आपको क्या करना है? B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, लाइन ड्रा करो ऐसे, जो कि यहाँ पे A से लाइन को N पे मीट करे. सो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, राइट? सो आइदर फोर्स आ गया आपके पास QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आई हमारे पास वो क्या आ गया? BN आ गया, राइट? अब हमें इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेना है. वो कैसे करेंगे? अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो BN परपेंडिकुलर, राइट, और ये जो AB है, दिस इज द डाइपोल लेंथ, और इस डाइपोल लेंथ को हम क्या बोलते हैं? 2A. सो हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल में हमें पता है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है. सो हम रेशियो लगाएंगे साइन थीटा की. सो वी नो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज BN और हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया AB. सो फ्रॉम हेयर BN इक्वल टू AB साइन थीटा. सो यानी जो VN की वैल्यू आपके पास आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, वो कितनी आ गई? 2A साइन थीटा. अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन में रख दो. सो देखिए आपके पास टॉर्क जो आएगा, टॉर्क इक्वल टू QE इंटू 2A साइन थीटा. Now see here, this is the charge Q and this is dipole length 2A. So Q into 2A, product of charge into dipole length, you know it is a dipole moment. We have already studied it. P equal to Q into 2A. So just put here torque equal to PE sin theta. So this is the expression for the torque experienced by the dipole when placed in the uniform electric field. Now sir, you can write it in the vector form also. Torque equal to tau equal to P cross E, because sin theta is there, so sin theta के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है, right? Now some special cases there. स्पेशल केसेस में क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू 0. अब हमने थीटा जो है वो क्या सपोज किया था? थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E. दिस इज द थीटा. अगर थीटा 0 या फिर 180 हो जाए, राइट? थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180. थीटा 0 मीन्स बट P and E are in same direction. P and E are in same direction means आपका जो डाइपोल मोमेंट या डाइपोल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे. सो इन दैट केस सेम डायरेक्शन. सो इन दैट केस थीटा विल बी 0. अगर 180 है सो दे विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो इन बोथ द केसेस, अगर आप थीटा की वैल्यू को यहाँ पे 0 रखें या 180 रखें, बोथ केसेस में साइन 0 या साइन 180 0 ही होता है. सो इन दैट केस टॉर्क विल बी इक्वल टू PE साइन 0 या साइन 180 इक्वल टू 0. मीन्स देयर इज नो टॉर्क. सो अगर आप डाइपोल को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रखेंगे तो कोई भी फोर्स टॉर्क नहीं लगेगी, राइट? इफ थीटा इज 90 डिग्री, सो थीटा 90 मीन्स
dipole is perpendicular to electric field. P and E are perpendicular to each other. You can see it in the diagram also. For example, suppose this is your electric field in this way, and you are placing dipole in this way. So angle will be 90 degree. So in that case, torque equal to PE sine 90 degree. So sine 90, you know, 1. So what is torque we have? PE, right? So torque equal to PE. This is the maximum torque we have. So this is the important conclusion, that torque on the dipole will be maximum when the angle between the dipole and the electric field is 90 degree. Now we will discuss work done to rotate the dipole in uniform electric field, right? So अभी हमने क्या देखा कि जब हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, ठीक है, सो हमारे पास क्या था कि जो टॉर्क लग रहा था वो टॉर्क कितना आ गया था हमारे पास? टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, राइट? अब हमने इस डाइपोल को रोटेट करना है. यहाँ पे हमारे पास था नेगेटिव चार्ज और एट दिस पॉइंट वी हैव प्लेस्ड द पॉजिटिव चार्ज, राइट? सो जब हम इसको रोटेट करेंगे सो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? सो उसके लिए सपोज करो, लेट वर्क डन टू रोटेट डाइपोल बाय एंगल डी थीटा. सो वर्क का फार्मूला तो आप सभी जानते होंगे. वर्क डन यू नो, force into displacement. This is the simplest way to find out the work done, but if force is there, right? Now we are discussing about the torque. There is a difference between the force and torque. Force produces the motion, whereas torque produces rotations. हमने देखा था जो उसमें टॉर्क लग रही थी, टॉर्क से रोटेशन प्रोड्यूस होगी, राइट? सो इन दैट केस जो वर्क डन होता है हमारा, वहाँ होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो हमारे यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाय एंगल डी थीटा. सो बट विल यू राइट डी डब्ल्यू मीन स्मॉल वर्क डन. सो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो टॉर्क की वैल्यू तो आपके पास है, हमने फाइंड आउट की है. टॉर्क की वैल्यू जो हमारे पास आई है अभी हमने लेटेस्ट जो फाइंड आउट किया, इट इज पीई साइन थीटा. पीई साइन थीटा, सेम वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं. सो पीई साइन थीटा एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हाट? डी थीटा. सो दिस इज द स्मॉल वर्क डन. सो नाउ अब हम सपोज करते हैं कि हमने जो डाइपोल है उसको रोटेट करना है किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 में. सो टोटल वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2. सो टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट. और कहाँ से कहाँ को रोटेट करना है? थीटा 1 टू थीटा 2. These angles are imaginary, हमने अपनी तरफ से इनको माना है, राइट? सो क्या आ जाएगा? पी ई साइन थीटा डी थीटा. जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे सो पी ई तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस कॉस थीटा. अगर नहीं पता है तो आप साइड में नोट्स बनाते वक्त लिख लिया करो. पी ई का जो इंटीग्रेशन है दैट इज माइनस कॉस थीटा. सो ये हमारे पास आएगा पी ई माइनस कॉस थीटा. सो माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ. कॉस थीटा थीटा 1 टू थीटा 2. सो माइनस पी ई जब हम इसको ओपन करेंगे सो अपर लिमिट दैट इज व्हाट? कॉस थीटा 2 माइनस कॉस
theta 1. This is a simple mathematics here we are using. So this is the work done to rotate the dipole from theta 1 angle to theta 2. Now suppose let जो एंगल हमने माने थे थीटा 1 और थीटा 2, इसमें से हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास एंगल थीटा 1 है वो 90 डिग्री है। थीटा 1 90 डिग्री का मतलब क्या है कि इनिशियली जो हमारा डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, राइट। और किसी दूसरे एंगल पे जो हम जा रहे हैं तो उसका हमें नहीं पता, उसको हम थीटा मान रहे हैं। सो इन दैट केस जो वर्क डन आएगा -PE cos of 90 minus cos of theta. Now you know cos 90. What is cos 90? Cos 90 is 0. So cos 90 होता है हमारे पास 0. इसकी वैल्यू जो है we know already. Cos 90 है 0. What we did a mistake here. Cos theta 1 is 90. So theta 1 की जगह पे हमें रखना है 90 डिग्री और यहाँ पे जो थीटा 2 है उसको रखना है थीटा. So now -PE cos of theta and you know cos 90 क्या हो गया 0. So ये हमारे पास जो क्या बच गया हमारे पास -PE cos theta. This work done to rotate the dipole is stored as the potential energy. This work done to rotate the dipole in uniform electric field stored as potential energy, right? Potential energy we have studied in the +1 class. So हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अब यहाँ आएगी, सो du, हम इसको पोटेंशियल एनर्जी को du रिप्रेजेंट कर रहे हैं, du इक्वल टू -PE cos थीटा. आल्सो आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -P.E. अगर cos थीटा की फॉर्म में हो तो डॉट प्रोडक्ट, अगर साइन थीटा की फॉर्म में हो तो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है. We have studied all in +1 class. So dear students, this is the work done or the potential energy stored in the dipole when it is rotated in the uniform electric field. So hope you are liking my video. Thank you very much. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं. Thank you very much.